मैम। Yes, Manisha ma'am. Come on, start, ma'am. Okay, sir. Sir, ma'am Kim. Okay, good morning, everyone present over here. And respected parents, teachers, dear students, happy Yoga Day to all of you. Today, I will tell you something about the Yoga Day, its importance and its in our life, and what are the benefits if one will experience when practicing it in daily basis. So Yoga Day was started in 2015 by the genuine effort made by the Prime Minister of India, Narendra Modi ji, and it is celebrated every year on 21st of the June. Yoga is the medicine that has the power to cure any disease of the universe, even those which cannot be cured by the prescription of the doctors. So it is very important for our health. So its more significance are the of the Yoga Days that it is celebrated across the globe to highlight the importance of the yoga and how it has been beneficial in keeping the body and mind in sound health. So it is considered as a holistic approach and targeting the different systems of the body and the mind. The yoga renews the mind with confidence. So it is a beautiful physical, mental, and spiritual practice that is adopted in the India. It is related to making a healthy body and a healthy mind. It is a beautiful exercising practice that links the soul to nature and keeps fit and active. It is a very rich and highly complex tradition which is followed here. So what is the importance of yoga in the student's life? So it boosts the self-esteem and confidence. Yoga helps to instill the confidence and bring learning to children on an exponential level. Yoga teaches them to be patient and work towards their goal. Yoga also provides tools for practicing compassion, mindfulness, generosity, focus, strength, and flexibility. So that is why we need yoga in our life. It brings together physical and mental disciplines to achieve a peaceful body and mind. It helps and manages the stress, anxiety, and keep us relaxed. It also helps in increasing flexibility of the muscle. It increases our strength of the body and tones also. So it improves respiration, energy, and vitality. So with that, I will stop here and I will invite Madik sir. He will show some of the asanas whose benefits I will tell one by one. So over to Madik sir. Hello sir. Okay. Yes, ma'am. Now first you have to. Now first, yes. Yes, ma'am. You have to continue. Benefits. First asana is Sarvangasana. So its benefit I will tell. So Sarvangasana is an asana which calms the brain and helps to relieve the stress and mild depressions. It stimulates the thyroid and prostate glands and the abdominal organs. It stretches the shoulders and neck, tones the leg, and it improves the digestion also. It reduces the fatigue and elevates insomnia. Now sir will show how to do this asana. Step by step, you can see and do with sir. Yes. Thank you, ma'am. Good morning to all. Thank you, sir.
and happy International Yoga Day. Okay. As you know, last year we are celebrating Yoga Day. In that we are doing pranayama, Kapalbhati, Bhastrika pranayam, then Anulom Vilom, and as well as Surya Namaskar also. But this year we are going to do some different exercises. That is Sarvangasan, Halasan, Chakrasan, and Dhanurasan. In that, just now, Madam has given benefits of Sarvangasan, explaining benefits of Sarvangasan. But I'm going to show the demonstration of Sarvangasan. First, keep in your mind this instruction you have to follow. Before starting of any asanas or exercise, you keep your mind and body relaxed, or don't give any stress of your body. And mind also sit in, and you have to sit in a clean and fresh area when you are doing yogasana or you are doing any exercise. Is it clear? As well as whenever you are doing any exercise or yoga, don't give jerk of your body or muscles. Do it slowly and step by step properly when you are doing yogic exercise. This instruction you have to follow. आपको कभी भी योगासना करते हो या कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको बिल्कुल किसी प्रकार का स्ट्रेस देना नहीं है, किसी भी बॉडी पार्ट्स के ऊपर स्ट्रेस नहीं देना है। जबकि आप पहली बार करते हो योगा तो आपको बिल्कुल ही स्लोली एंड स्टेप बाय स्टेप इसको करना है। और कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं डेमोन्स्ट्रेशन आपको करके दिखाऊंगा, बाद में आपको डेमोन्स्ट्रेशन करना है। डेमोन्स्ट्रेशन के वक्त आपको आपका वीडियो ऑन रखना है, लेकिन माइक म्यूट, माइक बंद रखना है, क्योंकि बाकी माइक ऑन रहने से बाकी सबको डिस्टर्ब होता है और योगासन करते वक्त वो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। देखो योगा हो या कोई भी एक्सरसाइज हो, वो करते वक्त आपको स्लोली और प्रॉपरली करना है। स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, पहला आसन मैं आपको करके दिखाता हूँ और बाद में आपको उसको मेरे साथ करना है स्टेप बाय स्टेप। लेकिन स्टेप बाय स्टेप करते वक्त नॉर्मल ब्रीदिंग आपका रखना है, चालू रखना है। एकदम सांस लेनी नहीं है, छोड़नी नहीं है। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ आपको वो आसन कंप्लीट करना है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू शो डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सर्वांगासन। Am I visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes. See, when you are doing सर्वांगासन, you have to sleep on your back. आपको पीठ के बल लेटना है और ये आसन करना है। कुछ आसन होते हैं वो पीठ के बल लेटकर आपको करना है, कुछ आसन होते हैं वो आपको पेट के बल लेटकर आसन करनी पड़ती है। लेकिन पहला जो आसन हम करने जा रहे हैं वो है सर्वांगासन। सर्वांगासन में आपको पीठ के बल लेटना है और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है मैं आपको वो आसन दिखाता हूँ। आप पहले देखो प्रॉपर्ली, बाद में आपको उसको मेरे साथ में करना है। ओके, देखो बीच बीच में मैं जब आसन कर रहा हूँ तो मेरा आवाज थोड़ा कम सुनाई देगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज करते वक्त आवाज आपको सुनाई नहीं देगी। तो भी थोड़ा ध्यान देके ये आसन देखना भी है और सुनना भी है कैसे करना है। जबकि ये बिगिनर्स होते हैं जो आप पहली बार करते हो, मैं एक फैक्ट आपको बताता हूँ कि हम लोग जब कभी ऐसी सिचुएशन आती है, पेंडेमिक सिचुएशन जैसे आज की ये कोविड-19 की सिचुएशन है, उसमें आप सबको अभी ये योगा हो या एक्सरसाइज हो, इसका महत्व अभी आपको सबको याद आ रहा है। क्योंकि देखो जब आप नॉर्मल जब लाइफ चलती है तब आपको इसका महत्व पता नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति आती है तब आपको एक्सरसाइज करना है, क्या करना है, कौन से करना है, और उसी के साथ आपको आपका बैलेंस डाइट के ऊपर आप फोकस करते हो। लेकिन मेरी एक आपको सबको, पेरेंट के साथ स्टूडेंट को भी, पेरेंट स्टूडेंट सबको एक गुजारिश है, आपकी निजी जिंदगी में आप जब भी कितनी भी बिजी हो या कितनी भी आप काम में बिजी हो, तो भी आपको कम से कम 15 या 20 मिनट से ज्यादा आधा घंटे तक आपको आपके खुद के लिए टाइम निकालना चाहिए। क्योंकि देखो अगर आप एक्सरसाइज करोगे, योगा हो, प्राणायाम हो या कोई भी एक्सरसाइज हो, रेगुलर एक्सरसाइज, वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग जो एक्सरसाइज है, स्ट्रेचिंग,
वो रेगुलरली करना है। अगर आप आज की ये सिचुएशन आई है, आज की ये पेंडेमिक कंडीशन आई है इसलिए आप करोगे तो ये आपके लिए तुरंत असरदार नहीं होगा। आप रेगुलरली रोज के रोज आप आधा घंटा, उसके बाद प्रैक्टिस के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ाओगे तो आपका ये बहुत ही असरदार होता है। कोई भी एक्सरसाइज है, योगा है, प्राणायाम हो या एक्सरसाइज, तो ये मेरी आप सबको गुजारिश है, आप रेगुलरली एक्सरसाइज करो। ओके। और एक बात, करते वक्त आप पहली बार कर रहे हो तो आपको किसी भी आपके बॉडी पार्ट्स के ऊपर स्ट्रेस आ सकता है, तो करते वक्त आपको थोड़ा सा धीरे धीरे से करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है। कैसे करना है, अभी पहला आसन मैं आपको करके दिखाता हूँ, वो है सर्वांगासन। आपको देखना है, उसके बाद आपको भी 2 बार वो स्टेप स्लोली करना है। उस जब आप खुद करोगे तब आपका वीडियो ऑन होना चाहिए, मुझे देखना है कि आप प्रॉपरली कर रहे हो कि नहीं। ओके, तो फर्स्ट आसन है इज सर्वांगासन। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू शो सर्वांगासन। देखो, सर्वांगासन करते वक्त आपको आपके पीठ के बल लेटना है और आपके दोनों हाथ ऐसे आपके फ्लोर की तरफ होने चाहिए और पूरी पूरी बॉडी आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, आपके पैर भी स्ट्रेट। स्टेप पहला है, आपको 30 डिग्री 1 काउंटिंग के साथ 10 काउंटिंग में आपको सर्वांग। एम आई ऑडिबल? आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? Yes, sir. ओके, देखो सर्वांगासन करते वक्त आपको 10 काउंटिंग में सर्वांगासन करना है। पहला देखो, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। 1 2 3, नॉट बेंड, नी बेंड नहीं करना है। 4 5 काउंटिंग में आपके जो लेग्स है वो 90 डिग्री में स्ट्रेट होनी चाहिए। 5 4 अगेन बैक, 6 7, देन आपको आपके बैक को थोड़ा सपोर्ट देना है 7 की स्टेज में, और धीरे धीरे से पैर को ऊपर की तरफ लेते रहना है। 7 8 9 एंड 10। आपको पूरी तरह से दिखाई दे रहा है? 10 काउंट साइड से भी। देखो, पूरी बॉडी का वेट आपको आपके शोल्डर्स के ऊपर होना चाहिए और नेक पे इसी सीधा रहना चाहिए। डू नॉट बेंड नी बेंड नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेट लेग और पूरा बॉडी वेट आपके शोल्डर के ऊपर। ये 10 काउंटिंग में ये आपका पूरी तरह से सर्वांगासन प्रॉपरली हो गया है। देखो 10 काउंटिंग में, फिर नीचे आते वक्त भी आपको स्लोली नीचे आना है। 10 काउंटिंग 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके, समझ में आया आपको कैसे करना है? इज इट क्लियर? 10 का Yes, sir. ओके। ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग आपकी चालू रखनी है, कंटिन्यू रखना है, सांस रोकना नहीं है किसी प्रकार की। नॉर्मल ब्रीदिंग में ही ये आसन आपको कंप्लीट करना है 1 से लेकर 10। लेकिन धीरे धीरे से आपको बैक को सपोर्ट, 7 के बाद आप बैक को सपोर्ट देना है और उसी के साथ ये अपना पूरा सर्वांगासन होता है। तो स्लोली करना है। ओके, समझ में आया? या फिर से एक बार मैं डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊं? ओके, नाउ वी ऑल टुगेदर। आप रेडी हो सब लोग? आप सबकी वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन होनी चाहिए सबकी। हाँ, अभी ओके, रेडी? तो आपको पीठ के बल लेटना है और फिर से ओके, स्टार्ट योर सर्वांगासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नी बेंड नहीं करने, लेग स्ट्रेट, पूरी तरह से आपका बॉडी वेट आपके शोल्डर के ऊपर होना चाहिए। ये हुआ सर्वांगासन। ओके, नाउ कम डाउन slowly. You have to wait 30 seconds in that position. Final position you have to say stand 30 seconds. Then 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। It is called सर्वांगासन। इसे सर्वांगासन कहते हैं। Is it clear? Okay. Yes, sir.
once again you have to do it. Now I am going to watch you. आप सबको करना है, मैं काउंटिंग करूंगा, आप लोग सब फिर से एक बार सर्वांगासन करेंगे. ओके, नाउ यू हैव टू स्लीप ऑन योर बैक पे स्लीप हो जाओ सब लोग. वीडियो ऑन रखने हैं. ओके, वेरी गुड. Leg straight, do not bend knee. Leg straight. Now you have to start 1, 2, slowly, 3, 4, 5, 6. You have to take support of your hands. 7, 8, 9, 10. All the body weight on your shoulder, straight leg. Very good, very nice. Some students are still not doing, some are doing. I said to you, parents also you have to do. Okay, very good. Some are doing, some are keeping their videos off. Please keep your video on. Yes, very good. 10. Now slowly come down. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Very good. Most of them are not keeping their videos on. Please, my humble request to all those who are doing this yoga, you have to keep your videos on, please. Very nicely you are doing. सभी बच्चों को निवेदन है और पेरेंट्स को भी, आप भी ये योगा सेशन में अभी आप ज्वाइन हुए हो तो प्लीज आप भी योगा करना है. ओके, नाउ वेरी गुड. हाँ, टीचर आहे नुसते बघ की. yes, टीचर आहेत आणि 6वी ते 9वी. Keep your mic off. Keep your mic off. माइक ऑन करना ही नहीं है आपको, ओनली वीडियो ऑन करके रखना है. ओके, वेरी गुड. नाउ ओवर टू मनीषा मैम, और सेकंड योगा. हाँ, सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज माइक को म्यूट करके रखें और वीडियो ऑन करिए आप. Okay, the next asan which sir will show is hal asan. As the name indicates, hal means the a tool which is used in the fields for the crop. So benefits of hal asan are helpful in the strengthening the neck muscles. हमारे neck के पास जो muscles है उसको strong बनाता है. Helpful in reducing the weight and back pain. If anyone has the back pain or anyone wants to reduce the weight, so this halasan is helpful in that. It also strengthens the backbone. Very good exercise for the backbone. Improves the blood circulation and calms the brain. This calm will come in almost all the asanas, and all the asanas directly help to our effect to our brains. So it gives the calmness also. It stimulates the abdominal organs and the thyroid glands. हमारे abdominal में stomach के area में जो भी organs हैं abdominal space में, it make it strong. It strengthens. It stretches the shoulders and spine. Our spinal cord is also get good stretch with this asana. It helps to relieve the symptoms of fatigue and stress. Mind stress, it reduces and calms our brain and body. Now over to Madik sir. Madik sir will show how to do this asana step by step. Okay, thank you, ma'am. So whoever are doing the asana, please be careful that don't give jerk to your body. Yes. How much you can do, that much only you try. Don't force your body to do that. जितना आराम से आप कर सकते हो उतना आप ट्राई कर. ओके, थैंक यू मैम. सी मैडम ने अभी जो भी इंस्ट्रक्शन दिए वो सही है कि आप देखो पहली बार आप एक्सरसाइज करते हो, योगा करते हो, कि मैं आपको जानता हूं कि जब माडिक सर हो या कोई टीचर आपको कुछ एक्सरसाइज करने के लिए उसी वक्त आप ज्यादा इंटरेस्ट लेते हो, लेकिन जबकि आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करने तो ही आपके बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और आपकी बॉडी पूरी तरह से ये एक्सरसाइज प्रॉपरली कर सकते हो और ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ही हेल्पफुल है.
तो अभी मैं आपको सेकंड एक्सरसाइज दिखा रहा हूं, जो है डेमोन्स्ट्रेशन है वो हलासन। हलासन, हलासन में आपको क्या करना है, हलासन में भी आपको पीठ के बल लेटना है। हलासन में भी आपको पीठ के बल लेटना है, लेकिन ये भी आपको 10 काउंटिंग में कंप्लीट करना है। 10 काउंटिंग में कंप्लीट करना है। कैसे करना है, क्या करना है, मैं आपको एक बार डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ। हलासन, देखो आप पीठ के बल लेट रहे हो, you have to keep your legs straight. Legs straight होने चाहिए। You have to keep your legs straight and keep your neck also straight. Both palms touching ground. Okay. ये पोजीशन है आपकी, जैसे कि शवासन में आप लेटते हो वैसी तरह ये लेटना है पीठ के बल। अभी मैं आपको हलासन की कोशिश करता हूँ। 10 काउंटिंग में कैसे हलासन करते हैं। हलासन मीन्स आपकी जो फार्मर जो खेत में हल चलाता है उसकी जैसी पोजीशन होती है, उस पोजीशन की वजह से इस आसन का नाम हलासन रखा गया है। ओके, तो अभी हलासन देखो, इसमें भी 10 काउंटिंग में कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप जाना है। 1 2 3 4 5, ये हुआ अर्ध हलासन। अर्ध हलासन से बोलते हैं। 5 6 7 8 9 10। 10 के वक्त आपके नीचे वाला वेट थोड़ा सा Parents are requested, or children, all of you are requested to please mute your mic. एक बार आप चेक करो आपके माइक्स म्यूट है कि नहीं, सभी से रिक्वेस्ट है। Yes, now once again you have to sit 10 counting. Slowly you have to do it. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. 10 में आपके पैर टच होने चाहिए, तो टच होने चाहिए। डू नॉट बेंड नी। 10, ये पोजीशन है हलासन की। 10, फिर से 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Slowly you have to come down. It is called हलासन। हलासन करते वक्त मेन चीज आपको ये ध्यान में रखना है, डू नॉट बेंड नी और डू नॉट गिव जर्क टू योर एनी पार्ट ऑफ बॉडी। पहली बार अगर आप कर रहे हो तो स्लोली स्लोली करो। दैट्स व्हाई आई एम गिविंग काउंटिंग। आई एम काउंटिंग 1 2 3। तो आपको हलासन करते वक्त स्लोली और प्रॉपरली करना है। जर्क मत दो, झटका देके ऐसे डायरेक्ट ऊपर नहीं जाना है और डायरेक्ट नीचे नहीं। इससे आपके इस बॉडी के किसी भी पार्ट के ऊपर क्रैम्प आ सकता है, मसल्स को क्रैम्प आ सकता है और वो बहुत ही हार्मफुल होता है। तो इसलिए कभी भी एक्सरसाइज करें स्लोली और प्रॉपरली करो, क्योंकि आप पहली बार करते हो। रेगुलरली इफ यू आर डूइंग हैबिट, इफ यू आर डूइंग रेगुलरली दिस एक्सरसाइज, देन इट विल बी गुड फॉर योर हेल्थ और इट विल बी giving benefits of your body. Okay, so once again I am showing halasan step by step. You have to see properly. 1 2 3, do not bend knee. 4 5, ये अर्धा हलासन पोजीशन। 6 7 8 9 10। 10 के बाद आपके टोज टच होने चाहिए पैर। 10 30 सेकेंड रुकना है इस पोजीशन में। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. It is called halasan. Okay, now students, you are going to do, parents also you are going to do halasan. Okay, अभी सब एक साथ में हलासन करेंगे। Keep your video on. Ready all of you? Ready? Sleep on your back. पीठ के बल लेटना है आपको। आपको भी करना है आसन। पीठ के बल लेटो। ओके, वेरी गुड। नॉर्मल ब्रीदिंग रखना है। नॉर्मल ब्रीदिंग में मैं आपको जब काउंटिंग स्टार्ट करूंगा तभी आपको आसन शुरू करना है। ओके, नॉर्मल ब्रीदिंग। ओके, रेडी? स्टार्ट। Some students are still walking here and there. Sleep on your back. Start. 1 2 3 4. Directly don't do. 5 6 7 8
9, 10. Some are doing very nicely. Some are giving jerk to their body. Okay, no problem. Directly don't come down. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Very good. Slowly you have to do. ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है आपको. लास्ट जो 10 काउंटिंग पोजीशन है वहां पे आपको 10 to 20 सेकंड तक एटलीस्ट रुकना है, क्योंकि वो आपके पूरे बॉडी, बैक मसल्स, आपके थाइज मसल्स, हैंड, शोल्डर के ऊपर प्रेशर आता है. ये मसल्स के ऊपर स्ट्रेस आता है. तो लेकिन वो बहुत ही बेनिफिशियल है आपके बॉडी के लिए. स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर बहुत ही असरदार है ये हलासन. ओके, इज इट क्लियर? इट इज कॉल्ड हलासन. लेकिन रेगुलरली आप करोगे तो ही आप इसे बहुत ही अच्छी तरह से कर पाओगे. नाउ नॉर्मल पोजीशन में आप बैठना है. सुखासन, जो मैंने आपको सुखासन की पोज दिखाता हूँ. जब भी कभी आप आसन हो जाने के बाद आपका जो रिलैक्सेशन पोज होता है वो ऐसे रहना चाहिए. आपके लेग फॉरवर्ड और दोनों हाथ पीछे की तरफ. ये है रिलैक्सेशन पोज. नॉर्मल सुखासन, ऐसे रिलैक्स. ये पोजीशन में आपको बैठना है. नॉर्मली आपके दोनों हाथ पीछे की तरफ, लेग सामने की तरफ और स्ट्रेट. जैसे ही आपका आसन खत्म होता है तो नॉर्मली आपको ऐसे बैठना है और नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ आपको फिर से नेक्स्ट योगा के लिए तैयार होना है. इज इट क्लियर? इट इज कॉल्ड सर्वांगासन. ओके, सॉरी, हलासन. ओके, नाउ over to Manisha ma'am. Madam is going to explain benefits of the chakras. Yes, thank you, sir. Now next asana is Dhanurasana. Am I audible? Yes, sir. Yes, ma'am. Okay. You are audible. Okay. So Dhanurasana, as the name indicates धनुष means धनुष. आपका बॉडी का जो शेप होगा वो धनुष के जैसा होगा. तो इसका बेनिफिट्स, इट स्ट्रेचेस द एंटायर फ्रंट बॉडी like ankles, thighs, groins, abdomen, chest, throat, and everything here you will get a stretch. It strengthens the back muscles. हमारे पीठ के बैक साइड में जो भी मसल्स है उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है. It improves our posture. जनरली आप स्टूडेंट्स बहुत देर तक बैठते हो, आपके पीठ ऐसा झुका के बैठते हो. तो if you regularly practice this Dhanurasana, this will improve your body posture. It also stimulates the organs of the abdomen and neck. हमारे neck area में जो भी organs हैं और हमारे abdomen पेट के area में जो भी organs हैं, it also makes them strong and good. Okay, over to Madik sir. Now he will show step by step how to do Dhanurasana. Okay, thank you ma'am. देखो, मैम ने अभी एक्सप्लेन किया है कि बेनिफिट्स क्या होते हैं धनुरासन के. जब आप पढ़ाई के लिए बैठते हो तो आप ऐसे बैठते वक्त आपकी पोजीशन क्या होती है मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बैठते हो आप और उसका प्रॉब्लम क्या होता है आपको. देखो, आप पढ़ाई के लिए बैठते हो तो आपकी जो बॉडी होती है वो नॉर्मली आप ऐसे पढ़ने के लिए बैठते हो तो आपका पूरा बैक ऐसे बेंड होता है. बेंड होके ऐसे बैठते हो. It is not a proper position to sit. आप जब भी कभी पढ़ाई कर रहे हो, बैठते हो किसी भी चेयर में, तो आपको सीधा बैठना चाहिए. देखो, ये पोजीशन होती है जैसे कि आप योगा करते वक्त जैसे ओंकार करते वक्त पद्मासन या सुखासन में बैठते हैं, इसी तरह सीधी पीठ आपकी सीधी होनी चाहिए. चेयर में बैठ रहे हो तो भी स्ट्रेट बैठना है, ऐसे झुक के नहीं बैठना है, जिसके कारण आपके स्पाइनल कॉर्ड को प्रॉब्लम आती है, आपके बैक मसल्स को प्रॉब्लम आती है, स्टमक में प्रॉब्लम होता है. तो ये सब मसल्स को आपको प्रॉब्लम आती है. तो इस मसल्स को और इस प्रॉब्लम से आपको छुटकारा पाना है तो आपको देखो कि आप योगा करते वक्त कौन सा योगा करना चाहिए. जबकि अभी मैडम ने जैसे बताया कि ये सब के लिए आपको धनुरासन बहुत ही असरदार है. तो धनुरासन कैसे करना है मैं अभी आपको बताता हूँ. धनुरासन की देखो, पहले दो आसन किए हमने, सर्वांगासन और हलासन. ये दोनों ही आसन में हम पीठ के बल लेटे थे, पीठ के बल लेटे थे जमीन पे. और अभी हम जो आसन करने जा रहे हैं वो धनुरासन है. धनुरासन को आपको पेट के बल लेटना है और
स्टमक के बल लेटना है और उसी के बाद जो पोजीशन होती है उस आसन को पूरा जब कंप्लीट होता है 4 काउंटिंग के बाद, आपका 5 काउंटिंग के बाद आसन पूरा कंप्लीट होता है, तब जो एक पोजीशन होती है वो पोजीशन धनुष्य जैसे होती है, बो की जैसे होती है। तो इसी वजह से इस आसन का नाम धनुरासन रखा गया है। ओके, तो नाउ आई एम गोइंग टू शो द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ धनुरासन। कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप, यू हैव टू सी। देखो जब मैं आप करके दिखाता हूं तो आप प्रॉपरली देखो कैसे करना है, क्या क्या, जर्क मत दो, स्लोली करो। अगर आपको पहली बार कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा स्ट्रेस महसूस होगा, धीरे धीरे से करो, लेकिन ठीक से करना है। कोई भी आसन हो, कोई भी एक्सरसाइज आप प्रॉपरली करोगे तो ही उसका असर आपको ज्यादा मिलेगा, नहीं तो वो आपको बेनिफिशियरी है। अदरवाइज आप कोई भी आसन करना है इसके लिए करोगे तो ये कभी भी आपको बॉडी के ऊपर असर नहीं दिखाएगा। तो इज इट क्लियर? तो करना है इसलिए नहीं करना है, आपके लिए और आपके बॉडी के लिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आसन है, तो आपको उसका बेनिफिट लेना है। तो कैसे करना है धनुरासन, उसको मैं आपको काउंटिंग वाइज आपको बताता हूँ स्लोली करके। अभी पहले आपको पेट के बल लेटना है, जबकि हमने पहले दोनों ही आसन किए थे पीठ के बल। देखो ऐसे, ठीक है, एम आई विजिबल? Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो पेट के बल आपको लेटना है, आपकी चिन को ऐसे वो फ्लोर पर ऐसे टच करना है, मेरी प्रॉपर पोजीशन को, इनको, और आपके हाथ ऐसे ऊपर की तरफ, आप दोनों पैर टच, एक दूसरे को टच करके ऐसे लेट जाना है। ये हुई आपकी नॉर्मल पोजीशन। इसे धनुरासन शुरू करते हैं पेट के बल। ये प्रॉपरली ऐसे नॉर्मल ब्रीदिंग आपका चालू रखना है, सांसों के ऊपर कंट्रोल नहीं करना है, नॉर्मली आपको रेगुलर जैसे सांस लेते हैं उस प्रकार आप सांस लेते रहना है। ओके, और अभी देखो फर्स्ट काउंटिंग में आपको आपका लेफ्ट लेग ऊपर लेना है, 1 में लेफ्ट लेग अप, 1 2 राइट लेग अप, 2 3 you have to hold left leg with your left hand, 3 4 you have to hold right hand to your right leg, 4 काउंटिंग। देखो फिर से, फर्स्ट में लेफ्ट लेग अप करना है, सेकेंड राइट लेग अप, थर्ड you have to hold your left hand to hold your left leg, 4 right hand to hold your right leg, 4 and 5 you have to keep your neck up and your thighs up, leg up, 5। ये पोजीशन साइड से ऊपर, आपकी चेस्ट भी ऊपर होनी चाहिए, ऊपर देखना है। ये पोजीशन में आपको 30 सेकंड तक रुकना है। और ऊपर हो सकता है, आप बच्चे हैं तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है, ऊपर आपका पूरा बॉडी वेट ऑन योर बेली, आपके बेली के ऊपर आपका पूरा बॉडी वेट होना चाहिए और ऊपर देखना है, और लेग्स ऐसे ऊपर उठा रहे। ये हुआ धनुरासन। फिर स्लोली डाउन होना है, 5 नेक टच करना है, फिर 4 राइट हैंड डाउन, 3 लेफ्ट हैंड डाउन, 2 राइट लेग डाउन एंड 1 लेफ्ट लेग डाउन। इसे कहते हैं धनुरासन। क्या कहते हैं? धनुरासन। देखो धनुरासन के वक्त मैंने काउंटिंग बताया, फर्स्ट काउंटिंग में आपको लेफ्ट लेग अप करना है, सेकेंड राइट लेग अप, थर्ड यू हैव टू होल्ड योर लेफ्ट हैंड टू होल्ड योर लेफ्ट लेग, 4 काउंटिंग में आपको राइट हैंड से राइट लेग को होल्ड करना है, और फिफ्थ में आपको पूरा बॉडी का वेट आपके बेली के ऊपर होना चाहिए, और आपकी दोनों पैर थाई से ऊपर, और आपकी चेस्ट ऊपर होनी चाहिए, और ऊपर की तरफ देखना है, नॉर्मल ब्रीथिंग रखनी है। ये बात ध्यान में रखो, क्योंकि अगर आप देखो मेरी फ्लेक्सिबिलिटी, आप एज वाइज अभी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती जाती है, जैसे आप बच्चे हो तो आपके पूरी तरह से आपके पूरा स्टेप आएगा, बो जैसा स्टेप आएगा, क्योंकि आपका पूरा चेस्ट ऊपर रहेगी, पीछे से पैर ऊपर लगेगा, पूरा बॉडी वेट आपके स्टमक के ऊपर या आपके बेली के ऊपर होना चाहिए, ऐसे दोनों तरफ से पैर और आपका चेस्ट ऊपर होगा, तो ये प्रॉपर पोजीशन होती है। फिर एक बार मैं काउंटिंग वाइज आपको करके दिखाता हूँ, स्टेप बाय स्टेप देख लो। स्लीप ऑन योर stomach, 1 left leg up, 2 right leg up, 3 hold your left hand to left leg, 4 right hand to right leg, then 5 you have to come up, 5,
5. Wait in this position 20 to 30 seconds. Then come down, your neck down, leg down. 5, 4, keep your right hand down. 3, keep your left hand down. 2, right leg down. And 1, left leg down. Normal. It is called Dhanurasana. What it's called? Dhanurasana. तो ये slowly और properly आगे आपको करना है. Okay? Ready? All of you ready? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Sleep on your stomach. Yes. पीठ के नहीं, पेट के बल लेटना है आपको सबको. मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे अपने वीडियो ऑन नहीं रख रहे. पेट के बल लेटना है. Properly you have to keep your mobile. Then I can see you it very nicely. Very good. Yes. आपको अपने पेट के बल लेटना है, स्टमक के ऊपर लेटना है. Very good. Come on, hurry up, don't waste time. Very good. Okay, now I'm starting. 1, keep your left leg up, left leg up, left leg only. 2, right leg up. 3, hold your left leg in your left hand. 4, hold your right leg in your right hand. Very good. 5, come on. Very good. Some students are doing very nicely. Okay, very good. Wait for 10 to 20 seconds. Go down. 5. Down होना है. 4, right hand down. 3, left hand down. 2, right leg down. And 1, left leg down. Very good. Very good. अब नॉर्मल ब्रीदिंग रखो, थोड़ा सा रिलैक्स में बैठो. रिलैक्स. वेरी गुड. नाइसली यू आर डूइंग. वन मोर टाइम. करना है कि नहीं? बोलो. एक बार और एक बार करते हैं धनुरासन. करना है. करना है ना? ओके, रेडी रेडी. फिर एक बार देखो, कुछ बच्चे बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे हैं और पोजीशन जो होती है वो प्रॉपर बो जैसी आ रही है. बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं. तो फिर एक बार आप ट्राई करो. चलो नेक्स्ट. रेडी. स्लीप ऑन योर स्टमक. पेट के बल लेटना है. कम ऑन. वेरी गुड. कुछ बच्चे अपना वीडियो ऑन नहीं किया है. कम ऑन, डू इट. Yes. Okay. Shall we start? 1, left leg up. 2, right leg up. 3, left hand to hold left leg. 4, right hand to hold right leg. And 5, up. Very good. Kanak is doing very nicely. Kanak. Then Kunal also. Sanskriti done very nice. 5, go down. Archit also doing very nice. 4, 3, 2, 1. Very good. Very good बेटा. Nicely. कुछ बच्चे बहुत ही अच्छी तरह से एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चों को अभी भी वीडियो ऑन नहीं है. मैं देख रहा हूँ, सबके ऊपर मेरा ऑब्जर्वेशन है. बहुत ही अच्छी तरह से कुछ बच्चों ने किया. थैंक यू. नाउ ओवर टू नेक्स्ट. मनीषा मैम. Yes, thank you, sir. Now next asana is chakrasana. Chakra means a circle, pura round. So whole body will get strengthened by this chakrasana. So it is a good pose to keep up the flexibility of our spine. हमारे spinal cord के लिए बहुत ही अच्छा है.
It also helps in enhancing the capacity of our lungs. By doing this आसन, जब हम ये आसन करते हैं तो हमारे lungs की ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, और जब हमारे बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी इज गुड फॉर दैट आल्सो. It reduces the tension of the brain. Many tensions we have in our brain. By doing this asana, our brain get calms. And it also sharpens our eyesight. हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा है, हमारे आंखों की रोशनी को बढ़ाता है. It strengthens our back. पीठ के जितने भी मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं. And it brings the elasticity to our body. हमारे बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है. हमारी बॉडी जैसे इलास्टिक को आप जैसे स्ट्रेच करते हो, टर्न फोल्ड करते हो, so it can easily fold. So that also it brings that elasticity to our body. If anyone cannot do the full chakrasana, there is also a half wheel posture. उसको बोलते हैं अर्ध चक्रासन. That also you can try. Here sir will show, but if you cannot do, no problem, because you are doing first time. Don't force your body to do. Try it. How much you can do, that is very good. I'm seeing that you all are trying very good. So continue that. So over to Madik sir. He will show you step by step how to do the chakrasana. Okay, thank you, ma'am. Okay, just now madam has explaining benefits of chakrasana. देखो आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए उसी के साथ आपके बैक मसल्स, आपके जो स्टमक है, उसी के साथ आपके नेक मसल्स के लिए ये बहुत ही अच्छा आसन है. और आपकी आंखों की रोशनी मीन्स बढ़ाने के लिए ये आसन, देखो ये आसन करते वक्त आपके पूरे बॉडी के पार्ट्स के ऊपर स्ट्रेस आता है, मीन्स आपके बॉडी के ऊपर एक्सरसाइज होता है. तो इस आसन बहुत ही असरदार और बेनिफिशियरी आपके बॉडी के लिए है. तो आप कैसे करना है, क्या करना है, अभी मैं आपको चक्रासन का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ. ओके, फर्स्ट यू हैव टू सी द डेमोन्स्ट्रेशन, देन यू हैव टू डू इट प्रॉपरली, स्लोली एंड प्रॉपरली. अगर आपको पूरी तरह से वो आसन नहीं हो रहा है तो भी ठीक है, कोशिश करो जितना हो सके अर्धा चक्रासन जैसी भी स्थिति में आ गए तो चलेगा, क्योंकि इस आसन करते वक्त आपको सपोर्ट की जरूरत है. अगर आपके पेरेंट्स आपके नजदीक है, आपके सिस्टर भाई कोई नजदीक है, तो वो सपोर्ट दे सकते हैं आपको ये बैक को. नहीं तो डायरेक्टली आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो इट इज नॉट इजीली, यू आर नॉट डूइंग इजीली. ओके, आपको नहीं आएगा कि एक ही साथ में आपको तुरंत ये आसन एक साथ में, इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है. तो हमेशा मैं कहता हूँ प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. तो आपको प्रैक्टिस करना है और रेगुलरली करना है, तो ही ये सब आसन आपके जीवन में असरदार साबित हो सकते हैं. एक दिन या 2 दिन करके ये आसन आपको लगेगा आज किया कल किया तो आपको क्यों नहीं उसका असर आपके बॉडी के ऊपर है. नहीं, आपको कोई भी आसन हो, कोई भी एक्सरसाइज हो, कोई भी प्राणायाम है, वो अगर आपके बॉडी के लिए हेल्पफुल चाहिए, आपके बॉडी की हेल्थ के लिए आपको चाहिए हेल्पफुल होना है, तो उसके लिए आपको रेगुलरली आपको ये एक्सरसाइज करने, ना कि एक दिन. ओके, ठीक है. तो अभी मैं आपको चक्रासन की डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ कैसे करना. चक्रासन में भी आपको पीठ के बल लेटना है. पीठ के बल, जैसे कि पहले 2 आसन हम पीठ के बल किए थे, सर्वांगासन और हलासन. थर्ड आसन हमने जो धनुरासन किया था वो पेट के बल लेटकर किया था. अभी जो थर्ड आसन है वो है चक्रासन. इसमें भी आपको पीठ के बल लेटना है. ओके, सी हाउ टू डू चक्रासन. पीठ के बल लेटना है और सेम काउंटिंग 5 काउंटिंग में ये आसन खत्म होगा. फर्स्ट में आपको लेफ्ट लेग आपको क्लोज लेना है, आपके जितने नजदीक आ सके उतना आपको क्लोज लेना है बॉडी के नजदीक, लेफ्ट लेग. ओके, 2 राइट लेग आपको क्लोज आपके फोल्ड करना है, नी में आपको फोल्ड करके रखना है, जितने भी नजदीक बॉडी के लाओगे उतना. 2 3 साइड से भी व्यू देखो. 3 आपको लेफ्ट लेग आपको आपके कंधे के नजदीक लाना है. देखो मेरी पोजीशन प्रॉपरली देखो आप. 1 के लिए लेफ्ट लेग holding and keeping close to your body. 2 right leg you have to keep close to your body, hold down and keep your, and 3 left hand को आपको आपके शोल्डर के नजदीक लाना है. पोजीशन देखो हाथ की, नहीं तो फिर आपके हाथ के ऊपर फिर प्रॉब्लम हो सकता है, क्रैम्प आ सकती है. 3 4 आपको राइट
हैंड आपको क्लोज आपके शोल्डर के पास लाना है, ये स्थिति में रहना है। ये हुई 4 पोजीशन। और 5 आपको आपके प्रॉपर लास्ट पोजीशन में आना है, जिसमें आपको 10 to 20 सेकंड उस पोजीशन में रुकना है नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। देखो 5 स्लोली कम अप, 5, ये हुई चक्रासन की पोजीशन। 5 स्लोली कम डाउन, और फिर 4 राइट हैंड डाउन, 3 लेफ्ट हैंड डाउन, 2 right leg down, and 1 left leg down. It is called चक्रासन। समझ में आया? फिर एक बार स्टेप बाय स्टेप मैं आपको करके दिखाता हूँ, स्लोली एंड प्रॉपरली। देख लो, 1 लेफ्ट लेग अप, 2 राइट लेग क्लोज टू योर बॉडी, 3 लेफ्ट हैंड, 4 राइट हैंड योर टेक क्लोज टू योर शोल्डर, एंड 5th में आपको पूरे प्रॉपर पोजीशन में आना है, चक्रासन की पोजीशन। इसमें 10 to 20 सेकंड रुकना है नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। हाँ देखो, 5 लेग डाउन होनी चाहिए, 5 डाउन, 4 राइट हैंड डाउन, 3 लेफ्ट हैंड डाउन, 2 राइट लेग डाउन, and 1 left leg down. It is called चक्रासन। What is called चक्रासन। आपको जब भी ये आसन कर रहे हो तो थोड़ा सा जर्क मत दो, स्लोली करो और प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप को जितना आता है उतना करना है। एकदम से जर्क नहीं देना है, नहीं तो आपके किसी भी बॉडी पार्ट्स के ऊपर क्रैम्प आ सकता है। साइड में यहाँ क्रैम्प आ सकता है, शोल्डर में क्रैम्प आ सकता है, या नेक में, थाइज में क्रैम्प आ सकता है। ओके, रेडी? नाउ यू हैव टू डू चक्रासन। आई एम गोइंग टू ऑब्जर्व यू how you are going to do chakrasana. Ready? Sleep on your back. पीठ के बैठना है सबको। It is okay. Very good. Now we are going to start chakrasana. Leg touch एक दूसरे को सीधे रखने हैं, सीधे लेग, स्ट्रेट लेग टच करके, यस प्रॉपर पोजीशन में करो। अभी तक स्टार्ट नहीं मैंने बोला है, रेडी प्रॉपरली। हाँ, दोनों लेग, शुभम सोल से लेग स्ट्रेट रखो, नॉर्मल पोजीशन में स्ट्रेट बैक। स्ट्रेट मीन वैसे नहीं बेटा, सीधे पीठ के बल लेटे हो अभी। शुभम सोल से। ओके, नाउ वी आर गोइंग स्टार्ट। 1 2 राइट लेग क्लोज, 3 4 काउंटिंग वाइज करना है सोल से, 5 अप। वेरी गुड, कनक is doing very nicely, very nice Kanak. Kunal, Shubham also doing very nice. Supriya, very good. Then Arya Kamkar, Arohi, Arshit Soni, Karthik, very good. 5 down. Swayam Jain, very good. This perfect sleep, please. Chakrika, very good. Slowly come down. 4 3 2 1. वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे हो। नाइसली यू आर डूइंग। ओके, रिलैक्स फॉर 1 to 2 minutes. रिलैक्स पोजीशन, हाउ टू सिट इन रिलैक्स पोजीशन आई एम शोइंग। आराम से बैठो, नॉर्मल रिलैक्स में। आप सुखासन में भी बैठ सकते हो, आपके पैर आगे रख के, हैंड पीछे रख के भी बैठ सकते हो। हाँ, तो ये रिलैक्स पोजीशन होती है। वेरी गुड। Now one more time we are doing chakrasan. Come on, ready? Sleep on your back. शुभम सर से जैसे मैं काउंटिंग करूंगा उसी के साथ करना है, डायरेक्टली नहीं करना है। काउंटिंग वाइज यू हैव टू डू। Sleep on your back. Sir, how we are doing? Very nicely. Shruti Yadav, very nice. I'm observing. Okay, good. Now start. 1, left leg close to your body. 2, right leg close to your body. 3, left hand take to your close to your shoulder.
4, right hand you have to take close to your shoulder, and 5, up. Very good, very nicely, good, good. Wait in 10 to 20 seconds, very nice. Very good, I'm observing, don't talk. Yes, Dhanushri also doing very nice, very good. 5, come down, slowly come down. 4, right hand down. 3, left hand down. 2, right leg down, and 1 left leg down. Very good. Normal. Stay. You have to sit. Place. Very good. बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे हो, लेकिन मैंने अभी देखा है इस सेशन में पेरेंट्स पार्टिसिपेट है, लेकिन कोई भी पेरेंट्स योगा करते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत सारे बच्चे भी अभी तक योगा करते हुए नहीं, कुछ ही बच्चों का वीडियो ऑन है, बहुत सारे बच्चे ऐसे ही बैठे हुए दिखाई देते हैं। मैं जब आपका पूरा ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ तब थोड़ा सा मुझे दुख हो रहा है कि आप ठीक तरह से कोई नहीं कर पा रहा है। ओनली यू आर वॉचिंग, नो, इट्स अ वेरी बैड थिंग। आई वॉन्ट एवरीवन हैज टू डू दिस योगा। ओके, थैंक यू। नाउ ओवर टू मनीषा मैम। Thank you, sir. Now, children, this Yogasana session is over, and I think you will do regular practice of these asanas at home. Then definitely you will get benefited with that. So your body posture, your mind, your whole body will be benefited by doing all these yogasanas. Now, next is Madik sir will tell something about the acupressure points. These are the points which, when they are pressed, they give relief from many of the problems, many diseases. So now get some knowledge from Madik sir about the acupressure points. Now over to Madik sir. Okay, thank you, ma'am. Okay, just wait. First, you have to allow me for sharing the video screen, sharing the screen. Harsh, if you are listening me, you have to allow me to share the screen. Okay. Thank you, ma'am. Just wait. You're welcome, sir. Yeah. Yes. Wait. Okay. Yes, you are looking that screen. Yes, sir. आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? Yes. देखो, Yes, sir. जैसे कि आप हमने जितने भी योगा भी किए, योगा हलासन, सर्वांगासन, चक्रासन, धनुरासन, उसी के साथ ये भी देखो, एक क्या आदत होती है लोगों को कि कितनी भी आप कोशिश करो कि आपके पास टाइम होता है, लेकिन आपको ये करने के लिए हर बार आप एक्सक्यूज ढूंढते हो, कुछ ना कुछ बहाना बनाते हो, नहीं हमारे पास टाइम नहीं है, ये करना कैसे करेंगे इतना टाइम में। लेकिन योगा हो, एक्सरसाइज हो, कोई भी, लेकिन जब कभी ऐसी सिचुएशन आती है तब आपको ये एक्सरसाइज कितना इंपॉर्टेंट है ये पता चलता है। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए आज कुछ थोड़े से बेसिक कंसेप्ट आपको, स्क्रीन विजिबल है क्या बच्चों? हाँ सर। Yes, sir. हाँ, दिखाई दे रही है? not visible. Not visible. Wait. Sir, now not Sir, not visible. Wait. Just okay. Now visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो देखो, जैसे कि मैंने बताया है उसी तरह आपको योगा करते वक्त जैसे प्रॉब्लम लगता है, तो आपके लिए एक छोटी सी ट्रिक, छोटी सी मैं ये जिसके कम समय में, कम टाइम में आप ये योगा कर सकते हो, जिसके कहते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट। आपके बॉडी के ऊपर कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, आपके बॉडी के ऊपर ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसके कारण आप आपके बॉडी को रिलीफ दे सकते हो, बॉडी में आप
प्रेशर एक्टिवेट करके आप बहुत आसानी से तंदुरुस्त रह सकते हो और कम समय में ज्यादा से ज्यादा आपको कैसे रिलीफ मिले ये एक्यूप्रेशर पॉइंट से आपको पता है। देखो आजकल की दुनिया में स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत प्रेशर होती है, जो जॉब करते हैं उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर होता है और स्ट्रेस महसूस करते हो सब लोग, बच्चे हो या पेरेंट्स हो, कोई भी जॉब करने वाले जो जितने भी पेरेंट्स है, कोई बच्चा है तो वो स्ट्रेस महसूस करते हैं और आपको लगता है कि ये स्ट्रेस तुरंत कैसे, स्ट्रेस से रिलीफ, ये स्ट्रेस कैसे तुरंत रिलीफ मिले हमें, तो उसके लिए आपको तुरंत ताजा फील कैसे कर सकते हो, तो उसी के लिए आपको मैं कुछ छोटी सी ट्रिक बताना चाहता हूँ जिसे कहते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट। कम समय में आप कैसे अपने दर्द से छुटकारा पा सकते हो, कैसे आप उसको रिलीफ पा सकते हो, ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स में दिखाया जाता है, एक्यूप्रेशर पॉइंट से आपको बताया जाता है। तो मैं आपको ये कुछ आपके स्क्रीन पे कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दिखा रहा हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो उसमें कुछ पॉइंट्स है। जो पहला पॉइंट है वो है हैंड वैली पॉइंट, हैंड वैली पॉइंट। देखो आपकी स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है वो जो इंडेक्स फिंगर और आपका जो थंब है उसके बीच में ये पॉइंट होता है। आपके बॉडी के हैंड्स के ऊपर जो इंडेक्स फिंगर है और आपका जो थंब है उसके बीच में जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं हैंड वैली पॉइंट। हैंड वैली पॉइंट को आप 1 मिनट तक दबाओगे, 1 मिनट तक आप कंटिन्यूसली 1 मिनट तक दबाओगे तो आपका सर दर्द, आपको टेंशन है, एंजाइटी है, तो ये कम करने के लिए ये पॉइंट बहुत ही असरदार है। उसी के साथ आपको दांतों में दर्द, आपके दांतों में दर्द है, पेट की प्रॉब्लम है या आपके नेक में पेन है, तो ये आप पॉइंट दबाओगे तो वो बहुत ही असरदार है और वो उससे आपको छुटकारा है, उस पेनिंग से आपको छुटकारा मिल सकता है। कौन सा पॉइंट है? हैंड वैली पॉइंट। देखो आपकी इंडेक्स फिंगर और जो थंब है उसके बीच में पॉइंट आपको दिखाया गया है, वो पॉइंट आपको प्रेस करना है 1 मिनट तक, 60 सेकंड तक आपको उसको प्रेस करना है वो पॉइंट को। और उस पॉइंट को प्रेस करने के बाद आपको जो सर दर्द आपको लग रहा है, सर दर्द है, आपको पढ़ाई टेंशन आया है, पढ़ाई आपकी कंप्लीट नहीं हुई है, तो वो टेंशन को आप रिलीफ पाने के लिए ये हैंड वैली पॉइंट का आप इस्तेमाल कर सकते हो। आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना पॉइंट? उस पॉइंट को 1 मिनट तक कंटिन्यूसली 1 मिनट तक प्रेस करना है, तो इसे कहते हैं हैंड वैली पॉइंट। समझ में आया? तो सेकंड आपका जो पॉइंट है वो है इंटरगेट पॉइंट। इंटरगेट पॉइंट, इंटरगेट, इनर गेट पॉइंट, सॉरी इनर गेट पॉइंट, सॉरी इंटरगेट नहीं, इनर गेट पॉइंट। इनर गेट पॉइंट जो आपके दोनों हाथों के पीछे के साइड में हिस्से में जो आपका ये है, क्या है, रिस्ट, रिस्ट के पीछे के साइड में आपको ये पॉइंट दिखाई देगा। ये पॉइंट आप प्रेस करोगे, ये पॉइंट भी देखो, कोई भी कैसे भी बैठे हो आप नॉर्मल, जैसे आप जानते हो योगासन में आपको प्रॉपर पोजीशन होना है या कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको उसमें पोजीशन, प्रॉपर पोस्चर और पोजीशन की जरूरत होगी। लेकिन ये ऐसे योगा है, ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है जो आपके बॉडी के ऊपर होते हैं, वो आपके कहीं भी किसी समय भी आप इसको कर सकते हो। आप चेयर में बैठे हो, आप सोने की स्थिति में हो, आप कभी भी स्ट्रेस, लेकिन आपको स्ट्रेस महसूस हो रहा है तो आप इस पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हो। इनर गेट पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर, आपके दोनों हाथों के बैक साइड जहां पे आपकी नस रहती है, आप जो, हाँ, तो उस पॉइंट को आपको, वेट, थोड़ा सा स्क्रीन डिस्टर्ब हो रही है, 1 मिनट। तो ये पॉइंट आपको इस पॉइंट को आपको दबाना है 60 सेकंड तक। हर बार मैं ये दोहराऊं कि 60 सेकंड तक आप यहाँ इस पॉइंट पर आप दबाओगे तो आपको इनर गेट पॉइंट जब आप हैंड्स के ऊपर दबाते रहोगे तो आपको देखो आपके दिल की धड़कन है वो कम हो सकती है। जैसे आपको फियर फील कर रहे हो कि आपको थोड़ा सा टेंशन आया है, आपके ये फियर जैसे लग रहा है, तो वो आपको कम करने में ये पॉइंट बहुत ही असरदार है। उसी के साथ आपको नींद ना आना, जैसे जिसे बोलते हैं आपको इंसोम्निया,
इंसोम्निया की स्थिति मीन्स नींद ना आना। आप कभी भी कोई भी कुछ भी काम दिया है तो आपको टेंशन की वजह से आपको नींद नहीं आती है, तो ऐसी स्थिति में आप इस पॉइंट को 60 सेकंड तक दबाओगे तो ये बहुत ही असरदार है इस स्थिति में। तो टेंशन है, नींद ना आने की बीमारी है आपको, तो आप जरूर इस पॉइंट का इस्तेमाल करें, आपको इससे रिलीफ मिलेगा, इससे आपको छुटकारा मिलेगा। ठीक है, ये हुआ इनर गेट पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट है थंबनेल पॉइंट। आप देखो आपके स्क्रीन पे थंबनेल पॉइंट। थंबनेल पॉइंट में आप देखो आपके जो कोई राइट हो या लेफ्ट अंगूठा है, उसके नेल के एज में एंड में आपको 1 मिनट मीन 60 सेकंड तक दबाना है, जिसके कारण आप दबाते रहोगे तो उसका आपको एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस से आपको रिलीफ मिलेगा। जब कभी आप काम कर रहे हो, काम की वजह से टेंशन आ रहा है और स्ट्रेस महसूस कर रहे हो, ज्यादा काम करने के बाद स्ट्रेस महसूस करते हो, या पढ़ाई नहीं हुई है तो आपको एग्जाम के वक्त आपकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं होती है तो आपको टेंशन आता है, तो टेंशन को रिलीफ, टेंशन से छुटकारा पाने के लिए ये थंबनेल पॉइंट का इस्तेमाल करना है। देखो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो उस जगह पे आपको नेल की एज में आपको 60 सेकंड तक दबाना है, काउंटिंग करके 60 सेकंड तक आप दबाओगे तो इस टेंशन से, एंजाइटी से और स्ट्रेस से आप छुटकारा पा सकते हो। उसी के साथ देखो आप जब भी काम करने जा रहे हो लेकिन आपका मन नहीं लगता है, निगेटिवनेस, निगेटिव थॉट आपके मन में आते हैं कोई भी काम करने की, ये मुझसे नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं, ऐसी स्थिति जो होती है, निगेटिव थॉट्स आपके मन में आते हैं, तो उससे भी आप छुटकारा पाने के लिए ये थंबनेल पॉइंट बहुत ही असरदार है। ये इस्तेमाल करो, बैठे बैठे ही आप कर सकते हो। आपको लगता है कि मुझे ये काम नहीं हो रहा है, मुझसे काम कर नहीं सकते हो, तो तभी आप ये पॉइंट को इस्तेमाल करो, थंबनेल पॉइंट को प्रेस करो, 60 सेकंड तक आप प्रेस करोगे, राइट हो या लेफ्ट कोई भी अंगूठा ले लो, उसके एज में नेल पॉइंट पे आप 60 सेकंड तक प्रेस करते रहोगे तो इससे आप छुटकारा पा सकते हो, नेगेटिवनेस आप में से चली जाएगी और उससे आपको बहुत ही असर मिलेगा। ओके, स्क्रीन विजिबल है? यस, स्क्रीन Yes, दिखाई sir. दे Yes, रही sir. है? ओके, Yes, हाँ, sir. ओके। तो नेक्स्ट एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो फेंची पॉइंट, फेंची पॉइंट, फेंची, फेंची पॉइंट, कौन सा फेंची पॉइंट, या देखो, लिसन लिसन लिसन, ओके, फेंची पॉइंट, फेंची पॉइंट में आपको आपके दिमाग के पीछे के साइड में थोड़ा सा नॉर्मल से ज्यादा सांस लेके उसको दबाना है, नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा सांस लेकर ये पॉइंट पे दबाना है, प्रेशर डालना है, लेकिन 60 सेकेंड मीन्स आपको 1 मिनट तक आपको उसको दबाना है। जो आपके स्क्रीन पे दिखा रहा है, जो देखो आपके नेक के साइड से ऊपर जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके ऊपर, ये हेड के पीछे की साइड में आपको नॉर्मल सांस लेते हुए उससे थोड़ा ज्यादा सांस लेते हुए उसको दबाना है। पॉइंट आपके स्क्रीन पे दिखा रहा है, वहां पे आप दबाओगे तो आपको आपको सर दर्द है और आपको आंखों की रोशनी का प्रॉब्लम है, तो इससे आपको छुटकारा मिल सकता है। लेकिन कितने देर तक दबाना है? 60 सेकंड तक, 1 मिनट तक आपको उसको दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है, लेकिन कंटिन्यूसली दबा के नहीं रखना है, दबाना है, छोड़ना है, ये प्रोसेस याद रखो। लेकिन कितनी देर तक करना है? 1 मिनट तक, 60 सेकंड तक आपको करना है, रोज डेली करना है, एक दिन नहीं करना है, रोज ये करना है। और एक बात, इससे फायदा आपको होता है जब आप दिन की शुरुआत करते हैं, स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जाना चाहते हो, या कोई भी काम करने के लिए मॉर्निंग में ऑफिस में जाना चाहते हो, तो जाने से पहले इस पॉइंट पे आप इस्तेमाल करो और पॉइंट पे दबाओ, तो ये बहुत ही आपका पूरा दिन एनर्जेटिक रहेगा। लो एनर्जी, जिनको लो एनर्जी का प्रॉब्लम होता है, पूरे दिन में आपको फ्रेशनेस महसूस नहीं होती है, लो एनर्जी, तो आपके मॉर्निंग में काम पे जाने से पहले, स्कूल में जाने से पहले अगर ये एक्यूप्रेशर पॉइंट का इस्तेमाल करोगे तो बहुत ही पूरे दिन भर आप फ्रेश रहोगे, एनर्जेटिक रहोगे, और पूरा दिन में जो नॉर्मल आपकी एनर्जी रहती है उससे ज्यादा एनर्जी आपके अंदर क्रिएट होगी। तो ये बहुत ही असरदार है आपके लिए, जो
लो एनर्जी लोगों में ये बहुत ही असरदार पॉइंट है। तो इसे बोलते हैं फेंजी पॉइंट। इज इट क्लियर? यस, समझ में आया? यस, नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट मिडल ऑफ एन एंड एल पॉइंट। मिडल ऑफ एन एंड एल पॉइंट मीन्स आपके नाक और ओठों के बीच का पॉइंट जो पॉइंट होता है उसको मिडल ऑफ नोज एंड लिप्स। नाक और लिप्स के बीच का जो पॉइंट होता है इसे मिडल ऑफ एन एंड एल पॉइंट कहते हैं। तो वो पॉइंट को आप दबाओगे 1 मिनट तक, कंटिन्यूसली नहीं, मीन्स ऐसे दबाकर नहीं रखना है, स्टेप बाय स्टेप दबाना है, छोड़ना है। ऐसी प्रोसेस आप करोगे मिडल ऑफ एन एंड एल, नोज और लिप्स के बीच में जो पॉइंट होता है उसको दबाओगे तो आपकी एकाग्रता बढ़ती है, एकाग्रता कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ती है। उसी के साथ आपका लेजीनेस कम होता है, लेजीनेस आपका कम होता है। तो ये भी बहुत ही बच्चों के लिए बहुत ही असरदार है। आपको अगर फीलिंग करते हो कि आपको फ्रेश नहीं लग रहा है काम करते वक्त या पढ़ाई करते वक्त, तो आप तुरंत इस पॉइंट का इस्तेमाल करो। नोज और लिप के बीच में पॉइंट दबाओगे 1 मिनट तक, कंटिन्यूसली 1 मिनट कर दबाओगे, छोड़ोगे तो बहुत ही असरदार है, जिससे आपकी एकाग्रता कॉन्सेंट्रेशन लेवल भी बढ़ती है पढ़ाई करते वक्त, और आपको जो लेजीनेस है, आपका जो आपको काम करने में थोड़ा सा लेजीनेस पैदा होती है, वो भी कम कर देता है ये पॉइंट। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है बिलो थंब पॉइंट। बिलो थंब पॉइंट, ये बिलो थंब पॉइंट आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। देखो, कोई भी राइट हैंड हो या लेफ्ट हैंड हो, उसके नीचे जो अंगूठे के नीचे जो पॉइंट होता है उसे बोलते हैं बिलो थंब पॉइंट। बिलो थंब पॉइंट में आपको 1 मिनट, ये भी 1 मिनट कंटिन्यूसली 60 सेकंड तक उसको दबाते रहना है। तो उससे आपका लीवर की प्रॉब्लम, स्पाइनल कॉर्ड जो रीढ़ की हड्डी होती है उसकी प्रॉब्लम, चेस्ट की प्रॉब्लम, या पेट में कोई भी आपको प्रॉब्लम है, स्टमक में, पेट में कोई भी प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम से आपको रिलीफ मिल सकता है बिलो थंब पॉइंट का आप इस्तेमाल करते हो तो। लेकिन कितने देर तक करना है इसको? 60 सेकंड तक आपको कंटिन्यूसली उसको दबाना है, छोड़ना है। आपके स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है ना, थंब के नीचे बिलो, ये प्रॉपर पॉइंट है, वहां पे आपको रेगुलरली दबाना है 60 सेकंड तक। तो ये बहुत ही असरदार होता है। कहाँ कहाँ पे? लीवर की आपको प्रॉब्लम है, स्पाइनल कॉर्ड में आपको प्रॉब्लम है, चेस्ट में आपको प्रॉब्लम्स है, पेट की कोई बीमारी है, तो इससे आपको रिलीफ मिलेगा, इससे इस दर्द से आपको रिलीफ मिलेगा। ये बिलो थंब पॉइंट पे आप 60 सेकंड तक दबाओगे, लेकिन दिन में 3 टाइम इसको करना है। तो इसे कहते हैं बिलो बिलो थंब पॉइंट। एंड इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट पॉइंट इज थर्ड आई पॉइंट। थर्ड आई पॉइंट, ये भी एक छोटे छोटे से, आप कभी भी बैठे बैठे भी आप ये कर सकते हो। अगर आपको स्ट्रेस महसूस कर रहे हो, आपको लग रहा है आपके दिमाग टेंशन है, आपको लीवर की प्रॉब्लम है, तो ऐसे बैठे बैठे करने के लिए कम समय में आप कभी भी कर सकते हो। इसलिए ये एक्यूप्रेशर पॉइंट बहुत ही असरदार है। लेकिन रेगुलरली आपको इसको करना है, ना कि एक बार। रेगुलरली आप करोगे तो ही ये बहुत असरदार है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज थर्ड आई पॉइंट। थर्ड आई पॉइंट, आप जानते हो भगवान शंकर जी का जो तीसरा आंख बोलते हैं, वो इसलिए इसका नाम थर्ड आई पॉइंट है। जहाँ पे लेडीज, महिलाएं या अपनी गर्ल्स बिंदी लगाते हैं, वो पॉइंट जो होता है उसको थर्ड आई पॉइंट बोलते हैं। और जब हम पूजा पाठ करते हैं तो आप मेरे को जो ये लगाते हो, क्या सिंदूर और टीका। क्या लगाते हो, टीका लगाते हो, टीका जहाँ लगाते हो वो जो पॉइंट है उसको बोलते हैं थर्ड आई पॉइंट। तो इस पॉइंट पे भी आप 60 सेकंड मींस 60 सेकंड तक आप कंटिन्यूसली 2 या 3 बार 2 to 3 मिनट्स दबाओगे दिन में, तो ये भी बहुत ही असरदार है। ये किसके लिए असरदार है? आपकी दिमाग की पावर बढ़ाता है, आपकी दिमाग की स्ट्रेंथ पावर जो होती है वो बढ़ाता है। उसी के साथ साथ आपको एकाग्रता, आपके दिमाग के हर एक ऑर्गन को मजबूती दे देता है। अगर ये आप कंटिन्यूसली
2 to 3 मिनट्स करोगे, यहाँ पे थर्ड आई पॉइंट पे प्रेस करोगे, तो ये आपकी दिमाग की पावर बढ़ाता है। जैसे कि आपको पढ़ाई करते वक्त आपको जो पावर लगती है उसके लिए बहुत ही असरदार है ये थर्ड आई पॉइंट। और इसी के साथ आपके दिमाग के जो जो भी जितने भी ऑर्गन्स है उसके ऊपर मजबूती आती है, स्ट्रेंथ आती है, तो इसे कहते हैं थर्ड आई पॉइंट। तो रेगुलरली करना है, एक दिन नहीं, रेगुलरली यू हैव टू डू, इट विल बी वर्कआउट वेरी नाइसली फॉर योर लाइफ और आपके बॉडी के लिए बहुत ही असरदार है और कम समय में बैठे बैठे भी आप कर सकते हो। तो ये हुआ थर्ड आई पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट से आपके नेक्स्ट पॉइंट है, देखो हाथों की आपकी 5 फिंगर्स है, पांचों फिंगर्स में भी बहुत ही ताकत होती है जो आपके बॉडी के ऊपर बहुत ही असरदार होते हैं। 5 उंगलियों के ऊपर पॉइंट्स रहते हैं। आप देखोगे तो जो आपका पहला पॉइंट है थम, थम जो है थम जो है थम के ऊपर एक पॉइंट रहता है, उसको आप उससे आप टेंशन को रिलीव कर सकते हो। टेंशन, ये थम को जो पॉइंट आपके स्क्रीन पे दिखा है उसको प्रेस करोगे 60 सेकंड तक आप प्रेस करोगे तो आपको अगर टेंशन आ रही है, एग्जाम नजदीक आ रही है और कोई भी टीचर ने काम दिया है, नहीं तो कहीं ऑफिस में आपको ज्यादा काम होने की वजह से टेंशन है, तो आप ये आपका थम है वो कोई भी राइट या लेफ्ट अंगूठा है कोई भी हो, वो उसके पीछे की साइड में आप 30-60 सेकंड तक दबाओगे, कंटिन्यूसली दबाकर छोड़ना है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस करेंगे तो आपका टेंशन, आपका जो भी तनाव है वो आप रिलीफ मिल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है वो जो आपको साइड में दिखाई दे रहा है फियर, वो जो आपकी इंडेक्स फिंगर बोलते हैं जिसे इंडेक्स फिंगर को आप दबाओगे छोड़ोगे तो आपके मन में जो भी फियर है, जब भी आपको फियरलेस फील कर रहे हो तो इंडेक्स फिंगर का आपको 60 सेकंड का दबाना है, छोड़ना है, तो इससे आपको रिलीफ मिलेगा। इंडेक्स फिंगर के ऊपर ध्यान दो। फियर, आपके मन में कभी भी काम करते वक्त आपको फियर लग रहा है या आपको ऊपर टेंशन आ रहा है तो वो फियर को कम करने के लिए इंडेक्स फिंगर के बैक साइड पे आप 60 सेकंड तक दबाओगे छोड़ोगे तो वो बहुत ही असरदार होता है। नाउ नेक्स्ट इज मिड फिंगर जो इसे हम बोलते हैं मध्यमा, हिंदी में उसे मध्यमा बोलते हैं। वो उस मिड फिंगर के बैक साइड में आप 60 सेकंड तक दबाओगे तो आपको एंगर, कभी कभी कुछ लोगों के बहुत ही गुस्सा आ जाता है, कभी कभी कुछ काम करते हो गुस्सा आ जाता है आपको, आपके हाथ में कोई भी चीज वो फेंक देते हो, तो आपके एंगर के ऊपर, आपके गुस्से के ऊपर काबू पाना है आपको, तो उसके लिए मिड फिंगर के फिंगर है उसके पीछे के साइड में आपको 60 सेकंड में दबाओगे तो वो आपका एंगर, आपका जो गुस्सा है वो कम हो जाएगा। तो गुस्से के ऊपर काबू पाने के लिए आपको मिड फिंगर का इस्तेमाल कर सकते हो, मिड फिंगर एंगर पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट है अपना जो है जो रिंग फिंगर बोलते हैं, रिंग फिंगर में आप क्या बोलते हैं उसको, आप तर्जनी सॉरी उसको आप अनामिका भी बोलते हो, अनामिका। वेट, स्क्रीन, हाँ, तो वो अनामिका रिंग फिंगर उसको हिंदी में अनामिका बोलते हैं। उस रिंग फिंगर में भी एक पॉइंट होता है, वो कब यूज करते हैं आपको जब सैडनेस है, कभी आप कुछ काम कर रहे हैं लेकिन वो प्रॉपरली ठीक से हुआ नहीं, हाँ, आपको लगता है तो आप खुद दुखी हो जाते हो, सैडनेस मीन्स दुखी होते हो, तो वो सैडनेस को कम करने के लिए वो बहुत ही असरदार है। कभी कभी आपको इंसिडेंट होता है, घर में कोई इंसिडेंट होता है, किसी की डेथ होती है आपको और स्ट्रेस होता है, थोड़ा सा सैडनेस, दुखी हो जाते हो, तो उसको कम करने के लिए ये रिंग फिंगर के पीछे के साइड में आप दबाओगे तो बहुत ही असरदार है। ओके, तो नेक्स्ट है आपका लिटिल फिंगर जिसे कहते हैं। लिटिल फिंगर पे भी एक पॉइंट होता है, जो पॉइंट आप दबाओगे 60 सेकंड तक तो वो भी बहुत ही आपके कॉन्फिडेंस बढ़ाने में, कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने में बहुत ही असरदार है। तो ये हुए अपने 5 पॉइंट, जिसके फिंगर्स के ऊपर, आपके हाथों के ऊपर 5 फिंगर्स के ऊपर जो पॉइंट होते हैं, इसका इस्तेमाल आप करोगे तो इससे आप बहुत ही असरदार होते हैं और आपसे कम समय में ज्यादा रिलीफ पा सकते हो। ओके, समझ में आया सबको? हाँ सर।
Yes, sir. ये है Yes, sir. आपके बॉडी के ऊपर अलग अलग तरीके के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं. ओके, ओवर टू मनीषा मैम. मैम, मनीषा मैम. यस, देखो जितने भी आपने एक्यूप्रेशर पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किए हैं, बहुत ही अच्छी तरह से आप इसको रेगुलरली करना है, जिसके कारण आपको कम समय में ज्यादा रिलीफ मिल सके और आपको आपके जो जिस भी व्याधि है, किसी प्रकार का आपको प्रॉब्लम है, उससे आप छुटकारा पा सकते हो. मनीषा मैम. Yes, sir. Yes, sir. यस. Yes. Now, children, it was really a good session of Yogasana and then a good information about some acupressure points given by the Madik sir. So on the behalf of everyone present here, I thank Madik sir to give such a good session to us. And I also thank all the parents who joined this session and made this program successful. And I thank a big thank to my dear children also who did all the asanas so nicely. Even the difficult one also you did so easily. So these asanas or this yoga is not only for one day. Today is the International Yoga Day. So it doesn't mean that you will do the yoga only for one day and then you will leave. Then you will not get any benefit of it. When you will practice it regularly, आप थोड़ा ही करो पर रोज करो, तब आपको इसका sure benefit मिलेगा. So these all are very good for your body, for your mind. So I think that you will regularly include these asanas or little bit of yoga in your daily life and get all the benefits of it. Thank you, children, and thank you, everyone. Now, Madik sir, you want to share something, or shall we end here? Yes, shall we end? Okay. Okay. So thank you, everyone, for being here and making this program successful. So we conclude our meeting here only. Okay. Then bye and have a nice day. Thank you, ma'am. Bye, ma'am.